ہندوستان راتوں رات یوں بدلا کہ مہاتما گاندھی دیکھتے رہ گئے۔ ہندوستانی مسلمانوں نے ڈائریکٹ ایکشن دے دیا۔ کرم چند گاندھی دلی سے ٹرین کے ذریعے پہلے بنگال میں، کولکتہ اور پھر نواکی علاقے میں پہنچے۔ زندگی کے آخری حصے میں گاندھی سیاسی زوال کا شکار ہوئے۔ اس کی وجہ تھی ان کی 4 چاہتیں، 4 ایسی خواہشات جن کے لیے انہوں نے زندگی بھر جدوجہد کی تھی۔ پہلے خواہش یہ تھی کہ ہندوستان تقسیم ہی نہ ہو، پاکستان اور بھارت الگ الگ ملک نہ بنے۔ گاندھی جی کہا کرتے تھے کہ ہندوستان کی تقسیم ان کی لاش پر سے گزرے گی۔ ان کی دوسری خواہش یہ تھی کہ انگریز پرامن طور پر ہندوستان چھوڑ کر چلے جائے، کوئی دنگا فساد نہ ہو، کوئی ہنگامہ نہ ہو، کوئی نقصان نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مہاتما گاندھی نان وائلنس پر یقین رکھتے تھے۔ وہ کسی بھی قسم کی لڑائی جھگڑے کو یا فساد کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کی تیسری خواہش یہ تھی کہ ہندوستان میں ایک ایسی حکومت قائم ہو جو اپنے ٹھاٹ پاٹ کے بجائے صرف عوام کی خدمت کرے۔ اس حکومت کے وزیر ان کی طرح سادی زندگی گزاریں، بڑی گاڑیوں کو بجائے ٹانگوں میں سفر کیا کریں، جو کہ آج تک نہیں ہو پایا ہے۔ گاندھی کی چوتھی خواہش یہ تھی کہ اگر خدا نہ خواستہ ہندوستان کی تقسیم کی نوبت آ بھی جائے تو ہندوستان اور پاکستان محبت کے رشتے میں بندھے رہیں، جو کہ یہ بھی نہ ہو سکا۔ ان میں کوئی دشمنی اور جدائی نہ ہو۔ تو یہ دوستو گاندھی جی کے یہ 4 خواہش تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ آزادی کے فوراً بعد ان کی یہ سب خواہشات ان کی آنکھوں کے سامنے مٹی کا ڈھیر بننے لگے۔ ہندوستان راتوں رات یوں بدلا کہ مہاتما گاندھی دیکھتے رہ گئے۔ اس تبدیلی کی شروعات ہوئی 16 اگست 1946 کو، جب مسلم لیگ کے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح کی اپیل پر ہندوستانی مسلمانوں نے ڈائریکٹ ایکشن دے دیا۔ مطلب یہ کہ اس دن ہندوستان بھر میں مسلمان سڑکوں پر آئے تھے، پاکستان کے لیے ایک تحریک چلائی، لیکن تحریک کا یہ دن خونی فسادات میں تبدیل ہو گیا۔ سب سے زیادہ فسادات، سب سے زیادہ خون خرابہ بنگال کے دارالحکومت کولکتہ میں ہوا تھا۔ ان فسادات میں کم سے کم 400 افراد ہلاک اور ہزاروں کے تعداد میں زخمی ہوئے۔ ہندوستان اور مسلمانوں نے ایک دوسرے کا قتل عام کیا اور گھروں کو جلایا۔ کولکتہ سے یہ فسادات ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں پھیلنے لگے۔ ممبئی، دلی، بہار وغیرہ بھی یہ فسادات کی لپیٹ میں ایک ایک کر کے آتے چلے گئے۔ صورتحال یہ تھی کہ مشرقی بنگال میں جہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی وہاں ہندوؤں پر حملے ہو رہے تھے، اور بہار میں جہاں ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی وہاں مسلمانوں پر حملے ہو رہے تھے۔ ان حالات میں گاندھی خون خرابہ روکنے کے لیے متحرک ہوئے۔ انہوں نے بنگال میں فسادات سے متاثر ہندوؤں کے علاقوں کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر انہوں نے بہار کے مسلمانوں کے لیے بھی آواز اٹھائی اور ایک خط میں لکھا کہ میرے خوابوں کی سرزمین بہار میں خود کو غلط راستے میں ڈال لیا ہے۔ اگر کوئی ایک گروپ غلط قدم اٹھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ دوسرا گروپ بھی بدلے میں وہی اقدامات کرے۔ کرم چند گاندھی دلی سے ٹرین کے ذریعے پہلے بنگال میں، کولکتہ اور پھر نواکی علاقے میں پہنچے۔ یہ دورہ ان کا خطرناک تھا دوستو، کیونکہ اس کے ساتھ ایک بھی گارڈ نہیں تھا۔ وہ صرف ایک بنگالی ٹرانسلیٹر کے ساتھ سفر کر رہے تھے تاکہ آگے جا کر بنگالی لوگوں کو سمجھا سکے۔ مسلمانوں اور ہندوؤں میں نفرتیں ختم کرنے کے لیے گاندھی نے یہ طریقہ اپنایا تھا کہ وہ دن کے وقت فسادات سے متاثر علاقوں میں جاتے تھے اور رات کے وقت کسی مسلمان کے گاؤں میں آرام کرتے تھے، یعنی وہاں پہ ٹھہر جاتے تھے۔ گاندھی کی کوششوں سے بنگال کا امن بڑی حد تک لوٹ آیا تھا، جس کے بعد مارچ 1947 میں مہاتما گاندھی نے بہار میں بھی فسادات سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ پختون قوم پرست رہنما باجا خان بھی اس دورے میں ان کے ساتھ ساتھ مہاتما گاندھی جہاں بھی گئے انہیں خوفناک تباہی اور دکھوں کا ایک جیسی داستان سننے کو ملی۔ وہ لوگوں کو تسلیاں دیتے رہے اور انہیں انتقامی کارروائیوں سے روکنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب نفرت کی جذبات بھڑک اٹھتے ہوں تو امن کی بات کرنے والا ذرا پرایا لگتا ہے۔ بس یہی کچھ گاندھی جی کے ساتھ بھی ہونے لگا تھا، اور انتہا پسندوں کی نفرت کا رخ اب ان کی طرف پھر آ گیا تھا، یہاں تک کہ ان پر حملے اب شروع ہو گئی۔ علی گڑھ ریلوے اسٹیشن پر ایک ہجوم نے ان کی ٹرین پر اٹیک کیا، یعنی ڈبے پر جس پر گاندھی بیٹھا ہوا تھا، اور حملہ واروں نے اس ٹرین ڈبے پر پتھر برسائے جس میں مہاتما گاندھی سفر کر رہے تھے۔ البتہ وہ ان حملوں میں محفوظ رہے۔ حملہ واروں نے ان کے راستے میں گندگی اور کانچ کے نوکیلے ٹکڑے پھینکنے شروع کر دیے تاکہ انہیں تکلیف پہنچے۔ اس کے جواب میں گاندھی نے جوتے اتار دیے اور ننگے پاؤں سفر کرنے لگے اس کانچ کے ٹکڑوں پر۔
वो खुद को तकलीफ देकर लोगों को बताना चाहते थे कि मेरे रास्ते के पत्थर मेरे सफर की रुकावट नहीं बन सकते। क्या हमें पाकिस्तान के मुतालबे को तस्लीम कर लिया? हिंदुस्तान की तकसीम यानी पाकिस्तान के मुतालबे को तस्लीम करने के पीछे कांग्रेस पार्टी की एक लॉजिक थी। इनकी लॉजिक ये थी कि अगर पाकिस्तान न बन सका तो हिंदुस्तान में तशद्दुद और बढ़ेगा, जिससे हिंदुस्तान गैर महफूज होगा। इसलिए कि हमें पाकिस्तान की हिमायत करके मुस्लिम अक्सरियत इलाकों से, मुस्लिम मेजॉरिटी इलाकों से खुद को अलग कर लिया। जी हाँ दोस्तों, आपको ये बात बता दें कि 1947 के इलेक्शंस के नतीजे में मरकज़ में यानी बरे सगीर के सेंटर में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की एक मुश्तरका अबूरी हुकूमत वज़ीर आज़म पाकिस्तान लियाकत अली थे। तो खैर दोस्तों, लॉर्ड बोन बेंटर ने कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और नेहरू से मुज़ाकरात करके पार्टीशन की तफसीलात की और 3 जून 1947 को पार्टीशन बैलन का बाकायदा ऐलान कर दिया गया। कांग्रेस की एक अहम मीटिंग हुई। मसला ये था कि कांग्रेस तो तकसीम पर राजी थी, लेकिन कांग्रेस के सरपरस्त करमचंद गांधी राजी नहीं थे। हिंदुस्तान को तकसीम करने की सोच पर महात्मा गांधी ने कहा था कि नेहरू और सरदार पटेल समझ रहे हैं कि उम्र के साथ साथ मेरे सोचने समझने की असलाहियत कम हो गई है। एक और मौके पर उन्होंने मायूसी से ये भी कहा कि मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, मैं वाकई में बूढ़ा हो गया हूँ। क्या चीज़ें वाकई में मेरी समझ में अब नहीं आती। दोस्तों, वो ये सब जानते हुए भी कि आप इनकी बात मानने का कोई इम्कान नहीं, लेकिन उन्होंने पार्टीशन की मुखालफत जारी रखी। वो लोगों से कह रहे थे कि मैं उन्हें चाहता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि आने वाली नस्लें मुझ पर लान तान करें और कहें कि मैं हिंदुस्तान के टुकड़े करने की वारदात में शामिल था। महात्मा गांधी की ये सारी इख्तलाफाई बातें पार्टीशन की तरफ बढ़ते हुए हिंदुस्तान में किसी को समझ नहीं आ रही थी। जैसे जैसे तशद्दुद बढ़ता गया, कांग्रेस में फैसले भी बढ़ गए। महसूस होने लगा इनकी हुकूमत हिंदुस्तान अवाम की बेहतरी और फसादात को रोकने के लिए भरपूर कोशिशें नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि मैं जवाहरलाल नेहरू को एक बेताज बादशाह की तरह समझता हूँ, लेकिन हिंदुस्तान इतना गरीब है कि इसके मुख्तलिफ लीडर को पैदल चलना चाहिए, मोहल्लों में रहने के बजाय क्वार्टर में रहना चाहिए, महल में रहने वाला हुकूमत नहीं चला सकता। उन्होंने नेहरू और सरदार पटेल को कई बार मुखातिब करके ये कहा था। उन्हें इस बात पर भी गिला था कि सरकारी दफ्तर में करप्शन इतनी आम क्यों हो गई है, जबकि हम आज़ाद हो चुके हैं। उन हालात में दोस्तों गांधी जी को इनके कुछ पुराने दोस्तों ने एक खुफिया मशवरा दे दिया कि वो पंडित नेहरू की हुकूमत गिराने के लिए वैसे ही तहरीक शुरू करे जैसे कि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ शुरू किया करते थे। महात्मा गांधी ने यह मशवरा मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस और उसकी हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक नहीं चलाएंगे। फिर वो लम्हा भी आया जब इंतहा पसंदों ने गांधी के घर पर हमला कर दिया। उन्होंने गांधी जी से कहा कि वो कश्मीर जाकर महाराजा हरि सिंह से बात करें और कश्मीर को हिंदुस्तान में शामिल करवाएं। महात्मा गांधी ने कश्मीर जाने की हामी तो भर ली, लेकिन साथ में एक ऐसा बयान भी दे दिया। गांधी जी ने कहा कि मैं महाराजा से ये कहने जा रहा हूँ कि वो हिंदुस्तान या पाकिस्तान में से किसी एक के साथ हो जाएं। हमें कश्मीर के लोगों से ये पूछना चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ, इनकी मर्जी क्या है। गांधी 1947 के रोज कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर में पहुंचे। कश्मीर के बाद मुसलमान महात्मा गांधी के दौरे को भारत से मिलने की कोशिश समझ रहे थे, इसलिए कश्मीर में की गई मकामात पर इनके खिलाफ एहतजाज हुए, मुजाहरे हुए। ऐसे में एक वाकया हुआ कि गांधी कार में सवार होकर कहीं जा रहे थे तो कुछ मुजाहिरीन पाकिस्तान के हक में नारे लगाते हुए गांधी जी के कार के पीछे दौड़े और उस पर करमचंद गांधी ने कार रुकवाई और लोगों से पूछा कि वो क्यों एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन में से किसी ने कहा हम पाकिस्तान चाहते हैं। गांधी ने कहा पाकिस्तान तो बन गया। इस पर उसी शख्स ने जवाब दिया हम यहाँ कश्मीर में पाकिस्तान मांगते हैं। महात्मा गांधी ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट किया। महात्मा गांधी बैठ गए और चले गए। उन्होंने महाराजा हरि सिंह और दीगर कश्मीरी लीडर से मुलाकातें की और 4 अगस्त को जम्मू के रास्ते रावलपिंडी चले आए। एक तो ये कि कश्मीर के वजीर आजम रामचंद्र, जिन्हें कश्मीरी मुसलमान पसंद नहीं करते थे, उन्हें ओहदे से हटा दिया गया। उसके अगले माह कश्मीरी लीडर शेख अब्दुल्ला, जो महाराजा के कैद में थे, उन्हें रिहा कर दिया गया। महात्मा गांधी कश्मीर का दौरा मुकम्मल करने के बाद ट्रेन के जरिए 6 अगस्त 1947 को लाहौर पहुंच गए। लाहौर रेलवे स्टेशन पर उन्होंने एक और ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मेरी बाकी जिंदगी पाकिस्तान में ही गुजरेगी, शायद मशरकी बंगाल में या फिर मगरबी पंजाब में या फिर सरहदी सूबे में।
जिसे आज खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं। महात्मा गांधी ने उस ऐलान के दौरान ये भी कहा था कि फिलहाल मैं यहाँ से जा रहा हूँ, यहाँ नहीं रोक सकता। मैं अभी बंगाल जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ के लोगों से मैंने वादा किया था कि मैं 15 अगस्त को यौम आज़ादी से पहले उनके पास हूँगा। उन्होंने हिंदुओं से ये भी कहा कि वो लाहौर छोड़कर ना जाए। दोस्तों, लाहौर रेलवे स्टेशन पर इस खिताब के बाद महात्मा गांधी पहले पटना फिर कोलकाता चले गए। अब 15 अगस्त को आज़ादी का दिन बहुत करीब आ गया था। करमचंद गांधी ने हिंदुस्तान में अपने तमाम पैरोकार से अपील की कि वो 15 अगस्त को आए। उन्होंने कहा कि हमारे पास अनाज नहीं है, कपड़े नहीं है, घी और तेल नहीं है, तो फिर हम कैसे आज़ाद और जश्न मनाएं? यानी हमें काम करना चाहिए। यहाँ उन्होंने मुस्लिम लीग के लीडर और बंगाल के साबिक वज़ीर आज़म हुसैन शहद से मुलाकात की। इस वक्त बंगाल पार्टीशन प्लान के तहत तकसीम हो चुका था। मशरकी बंगाल मशरकी पाकिस्तान बन चुका था, जबकि मगरबी बंगाल, जिसका दारुल हुकूमत कोलकाता था, वो हिंदुस्तान के हिस्से में आ चुका था। हुसैन शहद अभी तक कोलकाता ही में थे और मशरकी पाकिस्तान मुंतकिल नहीं हुए थे। महात्मा गांधी ने हुसैन शहद से मुलाकात की। उन्होंने तय किया कि वो दोनों मिलकर फसादात को रोकने और अमन बहाल करने के लिए जिद्दोजहद करेंगे। उन्होंने ये भी तय किया कि वो एक ही इमारत में रहेंगे ताकि हिंदू और मुसलमानों को भी भाईचारे के इस दर्स में लेके आए। तो अब करमचंद गांधी और हुसैन शहद मंजिल में मुंतकिल हुए। यानी हिंदुस्तान में ये इमारत अभी भी म्यूजियम के तौर पर रखा गया है। दोस्तों, एक खाली हवेली थी जो कुछ मुसलमानों की मलकियत रही थी, ताहम इनके मालिकान फसादात के बाद अब उसे छोड़कर चले गए थे किसी जगह पर। तो खैर दोस्तों, महात्मा गांधी और हुसैन शहद इसी बिल्डिंग में हैदरी मंजिल में रहने लगे। इनका एक ही इमारत में रहना हिंदू मुसलमान एहतियात की अलामत बन गया। दोनों लीडर अमन बहाल करने की कोशिशों में बहुत से हिंदू और मुसलमान जो फसादात की वजह से बेघर हो गए थे, वो अब इस घर में चले आए और इसके सहन में खैमे लगा कर रहने लगे। लेकिन हिंदू इंतहा पसंद महात्मा गांधी के इस कदम पर खुश नहीं थे। वो समझ रहे थे कि गांधी जी यहाँ सिर्फ मुसलमानों को बचाने के लिए आए हैं, क्योंकि कोलकाता तो भारत में शामिल हो चुका है। उसी रात को सैकड़ों हिंदू हैदरी मंजिल के बाहर जमा हो गए। उन्होंने नारेबाजी शुरू की और महात्मा गांधी से कहा, यहाँ क्यों आए हो? तो उन जगहों पर क्यों नहीं जाते जहाँ से हिंदू को निकाला जा रहा है और जहाँ उन पर जुल्म हो रहा है? इस पर महात्मा गांधी ने जवाब दिया कि मैं यहाँ सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हिंदुओं की मदद के लिए भी आया हूँ। इस पर हिंदू इंतहा पसंदों ने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी ने जवाब में कहा कि तुम मुझे मेरे काम से रोक नहीं सकते, मुझे कत्ल कर सकते हो, लेकिन मुझे हिंदुस्तान का दुश्मन कह नहीं सकते। इस इल्जाम को कबूल नहीं कर सकता। बहरहाल ये मुजाहरा दोस्तों कुछ देर बाद खत्म हो गया और हिंदू इंतहा पसंद लोग पुरअमन तौर पर चले गए। अगले रोज यही हिंदू दोबारा जमा हुए और महात्मा गांधी से फिर बहस की। ये 14 अगस्त की रात थी। गांधी जी ने उनके इतराजात के जवाब दिए और आखिरकार उन लोगों के दिल जीतने में कामयाब हो गए। वो इंतहा पसंद हिंदू जो उनसे लड़ने आए थे, वो उनके यहाँ गुन गाने लगे। इनमें से एक ने चीख कर कहा कि ये शख्स तो जादूगर है। वो इनसे इतना इम्प्रेस हुआ कि वो हैदरी मंजिल का गार्ड बन गया। हैदरी मंजिल को मरकज बनाकर कोलकाता को पुरअमन बनाने की कोशिश शुरू कर दी गई। इनकी कोशिशों से कोलकाता में वाकई में एक अमन की फिजा पैदा हुई, जिससे लगता था कि अब वहां पर कोई मजीद फसादात नहीं होगा। हिंदुस्तान के पहले गवर्नर जनरल नॉर्मन मेंटन भी महात्मा गांधी की कोशिशों से खुश थे। उन्होंने कहा कि पंजाब में हमने 56,000 फौज तैनात कर रखी है, लेकिन इसके बावजूद वहां हंगामे हो रहे हैं। लेकिन बंगाल में हमारी फौज सिर्फ एक जवान पर मुश्तमिल है और वहां कोई हंगामे नहीं हो रहे। उन्होंने कहा कि मैं इस एक जवान वाली फौज और उसके स्कैंडर कमाल मास्टर को सलाम पेश करता हूँ। इसी दौरान जबकि महात्मा गांधी अभी कोलकाता में ही थे, 14 और 15 अगस्त के वो तारीखी लम्हात आए जब पाकिस्तान और भारत आज़ाद हो गए। आज़ादी के मौके पर दोनों ममालिक में भरपूर जश्न मनाया गया। लेकिन दोस्तों, आज़ादी के खुशी में गांधी जी ने कोई जश्न नहीं मनाया। 14 और 15 अगस्त के दरमियानी रात में दिल्ली में जश्न हो रहा था।